سید اقرارُ الحسن، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے سالڈ ثبوت ہیں تو میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. ہمیں تو ایک لمحہ مس نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ لڑکی واقعی گینگ کے پاس ہے، گینگ کے چنگل میں، تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں ولاگ بنا رہے ہیں؟ آپ کو تو ولاگ بنانا بھی نہیں چاہیے. اور جا کر آپ وہ ثبوت دکھائیں اداروں کو اور ثابت کریں کہ وہ ایک گینگ کے پاس ہے اور لڑکی کو بازیاب کروا لیں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش بحاش ہوں گے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دعا زہرا کیس جو ہے وہ تقریباً 100% سالو ہو چکا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک سمپل لو میرج کیس ہے. جب سے یہ کیس آیا تھا، سب سے پہلے دن سے لے کر آج تک اس کو میں رپورٹ کرتی چلی آئی ہوں، اور جب سے میں اس کیس کو رپورٹ کرتی چلی آ رہی ہوں تو میرے ساتھ قافلہ بنتا گیا. اس سچ کے اندر اور بھی صحافی اور بھی رپورٹرز شامل ہوتے گئے، اور آج وہ دن ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دعا زہرا کیس تقریباً 1 ماہ سے ختم ہو چکا ہوا ہے. اب تو یہ دونوں فیملیز کی آپس کی ضد بازی ہے کہ کوئی کسی کو لوور کورٹ میں گھسیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو ٹرائل کورٹ میں گھسیٹ رہا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ چکا تھا، اور سپریم کورٹ سے جب فیصلہ دعا زہرا کے حق میں آیا تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جبران ناصر صاحب نے اسی وقت اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ واپس لے لی تھی. اور ابھی پھر سے میں دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں کہ دو فیملیز کی ایک سمپل لو میرج کیس کو گھسیٹا جا رہا ہے ٹرائل کورٹس میں. اب ایسی صورتحال میں جب 97% لوگوں کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ یہ سمپل لو میرج کیس ہے، 2% لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے سٹبن ہوئے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا تو شاید ہماری بیٹیاں بھاگ کے شادی نہ کریں، اور 1% وہ لوگ ہیں جو ہر معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہوتے ہی ہیں جو کبھی بھی کسی بات کو نہیں مانتے. ایسی صورتحال میں میرے بہت پیارے بھائی، میرے بڑے بھائی، جن کا میرے ساتھ 5 سال سے ایک انتہائی اچھا تعلق ہے، جب وہ کراچی تھے، لاہور آتے تھے، تب بھی میری ملاقات ہوتی تھی، فون پہ بھی میرا ان سے رابطہ رہتا ہے، اور صرف دعا زہرا کیس میں نہیں اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہم لوگ ڈسکشنز کرتے رہتے تھے، اور دعا زہرا کیس کے اوپر بھی میری ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی. میں نے پہلے ان کا نام نہیں لیا جی. میں بات کر رہی ہوں سید اقرار الحسن صاحب کی. ان کے ساتھ میری کافی دنوں سے کانورزیشن ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ وہ میرا نام نہیں لے رہے تھے. لیکن اب کیونکہ انہوں نے مجھے پرسنل کانورزیشن میں بھی کہا ہے کہ آپ میرا نام لے سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ولاگ میں بھی میرا نام لیا، تو میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ سید اقرار الحسن صاحب سے کچھ سوالات ہے. دیکھیں، میں ان کی چھوٹی بہن ہوں، میں ان کے ساتھ نہ تو کوئی مقابلہ کر رہی ہوں اور نہ ہی میرا مقصد ان کو ڈی گریڈ کرنا ہے. سید اقرار الحسن صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر 10 منٹ کے ولاگ کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، اور ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہونے کی حیثیت سے، ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے، اور ایک میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے، اور ان کی بہن ہونے کی حیثیت سے بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی ان سے کچھ سوالات پوچھوں. اور انہی کے ویڈیو کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ لیے ہیں، اور میں کوئی بھی سوال ایسا نہیں پوچھوں گی جو کہ ان کے پوائنٹ سے ہٹ کر ہوگا. جو انہوں نے کہا ہے وہی سوال میں آج ان سے پوچھوں گی. تو سب سے پہلے میں اقرار الحسن صاحب کا ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 1.5 ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت ساری انویسٹیگیشن ہے، میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں پر میں اپنے بھائی سید اقرار الحسن صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مؤدبانہ طریقے سے کہ ان کے پاس ویڈیو ثبوت بھی موجود تھے، ان کے پاس اتنی بڑی ٹیم بھی ہے، ان کے پیچھے ایک پروگرام، اتنا بڑا پروگرام ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ان کے پیچھے ایک چینل کی بیک سپورٹ بھی ہے، پھر ان کی بات کو بھی لوگ کریڈیبلٹی دیتے ہیں. ان کے پاس یہ سارے ثبوت موجود تھے. تو جس وقت ہمارے دونوں صوبوں کے کورٹس یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور دعا زہرا کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، اس وقت میرے بھائی جو تھے وہ ویڈیو کے ثبوت اور وہ ساری چیزوں کے ثبوت لے کر کیوں نہیں کورٹس میں ایک عام شہری کے طور پہ پیش ہو گئے؟ کیوں نہیں انہوں نے دعا زہرا کے جو والد کے وکلا تھے ان کو وہ تمام ثبوت دے دیے تاکہ وہ اس لڑکی کو بازیاب کروا لیتے؟ میرا سید اقرار الحسن سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے سالڈ ثبوت تھے تو ان کو نہ صرف ان کے وکلا کو دینے چاہیے تھے، بلکہ اگر ان کی کوئی بات نہیں بھی سن رہا تھا، فرض کر لیتے ہیں کہ وقتی طور پہ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا، اگر ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا تو ان کے پیچھے تو چینل کی بیک سپورٹ تھی. ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے اور وہ آ کر صرف ایک ولاگ بنا دیتے، صرف ایک اپلوڈ کر دیتے ولاگ؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ لینئر میڈیا کا سہارا لیتے، ان کو چاہیے تھا وہ اپنے چینل کا سہارا لیتے، ARY کا سہارا لیتے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ وہاں پر اتنا بڑا پروگرام کرتے ہیں سرے عام
सरेआम में उन्होंने कितनी बार लोगों के घरों में छापे मारे हैं, इतने बड़े बड़े वीडियो सबूत दिखाए हैं, वो कुछ भी ना करते, वो किसी कोर्ट में भी ना जाते, वो सिर्फ अपने प्रोग्राम में आते सरेआम में और वहां पर आकर वो तमाम वीडियो सबूत दिखाते ताकि पूरी कौम की आंखें खुल जाती। आप जैसा कि जानते हैं कि इस केस को मैं पहले दिन से रिपोर्ट कर रही हूँ और मुझे अच्छे तरीके से पता था, मैंने इतना बड़ा स्टैंड ऐसे ही नहीं ले लिया था। देखिए, जब दुआ ज़हरा के वालिदैन ने पहले दिन आकर ARY चैनल पर बैठकर तफरकेबाजी फैलाने की कोशिश की थी, बल्कि फैलाने की कोशिश नहीं की थी, फैला दी थी, उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने उलमाए कराम को और तफरकेबाजी को जब हवा देने की कोशिश की थी, तो उसके फौरन बाद आपको याद होगा कि अगवा का जो ड्रामा कहने के तौर पर रचाया गया था, उस वक्त सबसे पहले हमारी जो टॉप मोस्ट एजेंसीज हैं उन्होंने सबसे पहले इसको वेरीफाई किया था। फौरी तौर पे ज़हीर के घर पे, शब्बीर के घर पे छापा मारा गया था, उनके डॉक्यूमेंट से लेकर तमाम चीज़ें उनके घर से उठाकर ले जाई गई थी इस पर्पज़ से कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था कि क्या वाकई इनका ताल्लुक किसी गैंग से है या नहीं। फिर आप ये देखें कि एजेंसीज ने ना सिर्फ उनके फ़ोन ट्रेस किए, ना सिर्फ उनके अकाउंट्स वक्ती तौर पे ब्लॉक किए, ना सिर्फ उनके ID कार्ड्स ब्लॉक किए, ना सिर्फ उनके रिश्तेदारों से पूछा, बल्कि चारों सूबों की पुलिस से मदद ली, फिर जाकर कोर्ट्स ने उनको इनोसेंट प्रूव किया। एजेंसीज जो हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने तौर पे, ना सिर्फ उनके रिश्तेदारों से, ना सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स, ना सिर्फ उनके रिकॉर्ड से पता कराया, बल्कि वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम जर्नलिस्ट जो इस केस के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको भी कॉल्स की, जिसमें मैं भी शामिल थी। ना सिर्फ मुझे, बल्कि आपको याद होगा कि हमें लाइव कोर्ट रूम से रिपोर्ट करते थे बिलाल साहब, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया, उनसे भी पूछा कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं, मुझसे भी पूछा। ये जो मेरे बारे में एक प्रोपोगंडा चलाया गया था कि जुनैरा कहती है कि मैं एजेंसीज के साथ राब्ते में हूँ, एजेंसीज जो होती हैं जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में तमाम लोगों को शामिल करती हैं, उसमें सहाफ़ी भी शामिल होते हैं, उसमें आम आवाम भी शामिल होते हैं, उसमें मोहल्लेदार भी शामिल होते हैं, उसमें रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उसमें उनकी जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी सारे के सारे शामिल होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि जो इंसान होता है, चाहे वो कितना बड़ा जर्नलिस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलती का पुतला ना हो या उससे गलती हो नहीं सकती। ऐसा भी तो होता है कि बाज़ दफ़ा वो इंसान खुद गलत ना हो लेकिन उसकी टीम उसको फंसवा दे, उसकी टीम की जो नाकिस कारकर्दगी है या नाकिस उनकी मालूमात है वो आगे होस्ट को वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन पास करें उसकी वजह से वो उसको मरवा दें। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि सैयद इकरारुल हसन ने ये कहा अपने व्लॉग के अंदर कि वो पिछले 10 साल से सरेआम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, लेकिन क्या वो ये कसम खाकर कह सकते हैं कि आज तक जितने भी केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए वो 100% सच्चे थे? तो फिर अगर वो ये बात कहते हैं तो मेरे उनसे 2 सवाल और हैं। वो क्या? नंबर 1, आपको याद होगा कि इकरारुल हसन साहब की नाक के नीचे उनकी अपनी ही टीम के लोग करप्शन करते थे, लोगों से पैसे लेते थे, और फिर आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने इकरारुल हसन साहब को जब शिकायत की थी, बहुत मुश्किल से उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाती थी, क्योंकि जिस टीम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी वो टीम खुद करप्शन में इन्वॉल्व थी। और उसके बाद जब ये किसी तरीके से या कैसे भी करके इकरारुल हसन साहब तक ये बात पहुंची थी, तो आपको याद होगा कि उन्होंने अपने ही लोगों को फिर अपने प्रोग्राम से फायर किया था और लोगों से माफी मांगी थी। ये छोटा सा एक क्लिप है, मैं चाहती हूँ आप जरा ये देखें। चोरी नहीं छुपती करा भाई। मैं रात को ये बैठ के सोच रहा था यार ये हुआ बहुत गलत हुआ, शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा चांस है पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगनी पड़े, मांग लूँगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूँगा, ये मैंने सोचा। कौन मौका देगा आपको? मैं नहीं देगा, लेकिन सोचा था खौफ। चलो अल्लाह से तो आपका फैसला है। नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? कौन मीडिया आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। बस मुझे तो नंगा कर दिया आपने सब लोगों ने। तस्वीर समझ के कि जो किया है, और ये देखो इधर मैं ये करना सर फेस करे ना सामने। नहीं कर सकता। लोग कहेंगे अपने बंदे का चेहरा दिखाया नहीं, दूसरों की पूरी दुनिया को बेनकाब करते थे। मैं बस जी, तो आप लोगों ने देखा ये जो मलून शख्स आपको माफी मांगते हुए नजर आ रहा है, ये शख्स बाद में जब प्रोग्राम से निकाला गया था तो आपको पता है ये क्या करता है? आजकल ये YouTube चैनल बनाकर बैठा हुआ है। ये कौन मलून शख्स है जो खुद करप्शन में मुलव्विस था, जिसको इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम से निकाला था, और ये बंदा कितने पैसे खा चुका था और टीम के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा था, और उस पर किसको माफी मांगनी पड़ी?
सैयद इकरारुल हसन साहब को। और दूसरा सवाल मेरा सैयद इकरारुल हसन साहब से ये है, आपको याद होगा कि सैयद इकरारुल हसन ने आयशा नामी एक टिकटॉकर, जो कि माजरत के साथ मुझे ये वर्ड बोलना पड़ता है, एक कॉल गर्ल थी, और रैम्बो नामी एक शख्स था जिसके साथ मिलकर वो ये कारोबार किया करती थी। और फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि उसने 2 दिन पहले अपने उस मैनेजर को कहकर ये पोस्ट लगवाई थी कि वो 2 दिन के बाद मीनार पाकिस्तान पे आ रही है टिकटॉक्स बनाने के लिए। और फिर आपने देखा कि वहां पर उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसके साथ ब्रुटैलिटी हुई थी, और वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी। उस वक्त भी ये केस सबसे पहले मैंने रिपोर्ट किया था और बिल्कुल सच्चा रिपोर्ट किया था, लेकिन माजरत के साथ सैयद इकरारुल हसन की टीम ने उनको ये केस सही रिपोर्ट नहीं किया। और एक और बात कि दोस्त हमेशा दोस्त की सोहबत से पहचाना जाता है। सैयद इकरारुल हसन साहब जब से लाहौर आए हैं, एक मस्खरा जिसका नाम है जी यासिर शामी, जो उनका पीछा नहीं छोड़ता, जो हमेशा पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है ना गंदे गंदे खेल खेलता है, उसने यासिर शामी ने इनको जलील करवा दिया था। कैसे जलील करवा दिया था कि पहले तो मुबैना तौर पे इन दोनों में से किसी एक का घर था, या तो यासिर शामी का घर था या सैयद इकरारुल हसन का घर था। वहां पर इन्होंने आधी रात को बुलाया था आयशा इकराम को, और वहां बिठाकर इन्होंने जब उसके सर पे हाथ रखे और इन्होंने कहा कि ये हमारी कौम की बेटी है, ये वो, और बाद में फिर इन्होंने कहा कि सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। मतलब ये 2 बातों के तजादात थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम इसके लिए स्टैंड लेंगे, और जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की थी, तो सब लोगों को पता चल गया था कि वो लड़की खुद इन चीज़ों में मुलव्विस रही है, उसका अपना कसूर है, और लोगों का उस तरह से एज सच कसूर नहीं है, क्योंकि ये खुद वहां पर आदमियों को सेड्यूस करती रही है। और फिर आप लोगों ने देखा कि वो मस्खरा यासिर शामी सैयद इकरारुल हसन को बिल्कुल अकेला छोड़कर गायब हो गया था, भाग गया था। उन्हीं दिनों में मेरा उससे राब्ता भी हुआ था और मेरी उससे बात भी हुई थी, और मैंने उसे ये कहा भी था कि तुमने सैयद इकरारुल हसन को माफ़ी मांगने पे लगा दिया और खुद तुम भाग गए। और पता है उसने क्या किया? उसने एक बहुत बड़ा मुझे लाफ्टर दिया था। उसने कहा था कि मेरा तो काम ही यही है, मैं इसी तरह करता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करा के खुद भाग जाया करता हूँ, बिल्कुल उस तरह जैसे उसने मेरा इंटरव्यू किया, उसमें मेरी बातें काट दी, दीवार के पीछे उसने गलत किस्म के साए दिखाए जो कि थे ही नहीं, फोटोशॉप करके। और जब मैंने उसे पूछने के लिए कॉल की तो उसने एज यूजुअल फिर वही हरकत की कि मेरा नंबर ब्लॉक किया और गायब हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं 2 मिनट में आपको सम अप करके बताती हूँ कि सैयद इकरारुल हसन साहब ने, जैसे कि अपने ब्लॉग में जिक्र किया, कि वो इनके जो वकील हैं राय खुरम साहब, उनके साथ पिछले 25 दिन से तकरीबन राब्ते में थे, तकरीबन 1 महीना आप लगा लें। लेकिन राय खुरम साहब को वो ये कहते थे कि मैं इनकी सुलह करवाना चाहता हूँ। किसकी सुलह करवाना चाहता हूँ? दुआ जहरा की उसके वालिदैन के साथ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब राय खुरम साहब दुआ जहरा से ये पूछते थे कि तुम अपने वालिद से सुलह करने के लिए बीच में मीडिएटर के तौर पे सैयद इकरारुल हसन को डालना चाहती हो, तो वो क्या करती थी? वो अपने शौहर को कहकर डायरेक्ट अपने वालिद को फ़ोन करना शुरू कर देती थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि अगर मेरे वालिद वाकई सैयद इकरारुल हसन के थ्रू मुझे ये मैसेज पहुंचा रहे हैं तो क्यों ना मैं उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेहदी काज़मी की फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट थे। वो सब मुझे ये बता रहे थे कि वो सिर्फ एक ड्रामा है, कोई सुलह की बात नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी सिंध की बासर शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे उनके बिहाफ पे कॉल की थी। सैयद इकरारुल हसन अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि उनके वालिदैन ने सिर्फ आपको इसमें शामिल नहीं किया, मेरे पास सबूत है, एक और भी सिंध की बहुत बड़ी शख्सियत है जिनको उन्होंने शामिल किया। वो क्या करते हैं, आप जैसे मोतबर लोगों को सामने करके उनको जलील करवा देते हैं, और बाद में फिर आपने देखा कि एक तरफ वो सैयद इकरारुल हसन के थ्रू राय खुरम से बात कर रहे थे, एक तरफ इकरारुल हसन जो थे वो मुझसे बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ मेहदी काज़मी क्या कर रहे थे कि वो अपना वीडियो बयान जारी कर रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं तो कभी सुलह करूंगा ही नहीं। और फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर गौर कीजिएगा कि सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि इनके जो वालिदैन हैं उनका सोशल मीडिया पर बयान कुछ और होता है और पर्सनली वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सुलह करवा दो। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि क्या ये मुनाफिकत नहीं है कि उनके वालिदैन जो हैं वो एक तरफ अपनी लीगल टीम को कह रहे हैं कि इन्होंने, पंजाबी जो कहते हैं, तुन के रखो, इन्होंने जलील करके रखो। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना एक वीडियो बयान जारी करते हैं और वो तमाम यूट्यूबर्स को देते हैं कि ये सबको अथॉरिटी है, किसी को कॉपीराइट नहीं आएगा, सब लोग वो वीडियो लगाएं। और उसके बाद तमाम यूट्यूबर्स आते हैं और आकर मेहदी अली काज़मी का वीडियो बयान जो है वो लगा देते हैं कि मेहदी अली काज़मी कह रहे हैं कि मैं ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना मैं ये करूंगा, ना मैं वो करूंगा, ना मैं सुलह करूंगा। जब मैं हार रहा था मैंने उस वक्त नहीं इनसे सुलह की, तो मैं अब सुलह करूंगा। ये सारे बयान आप लोग सुन चुके हैं। लेकिन फिर मेरा ये सवाल है कि दूसरी तरफ वो जाकर फिर गोडे गिट्टों में पड़ जाते हैं सैयद इकरारुल हसन के, और उस बाज़र शख्सियत के जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, उनका नाम भी मैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं लूँगी जब तक वो मुझे इजाज़त नहीं देंगे। सैयद इकरारुल हसन का नाम भी मैंने तब तक नहीं लिया जब तक कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। तो ये फिर उन लोगों के थ्रू कॉल्स कराते हैं, और जब वो मैसेज पहुँचता है
दुआ जहरा की फैमिली तक या दुआ जहरा तक। तो दुआ जहरा क्या कहती है, मेरे लाइव सेशन में आकर वो लड़की 2 घंटे बैठी है, अगर आपने नहीं देखा वो लाइव सेशन देखें। वो कहती रही है कि मेरे पास तमाम कॉल्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो कहती रही है कि मैंने जनाब अली इनको इंस्टाग्राम पे कॉल्स किए हैं, फेसबुक पे कॉल्स किए हैं, मैंने इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स किए हैं, ये हत्ता कि जब उनके पास सिम्स नहीं थे, उनकी सिम्स ब्लॉक हो चुकी थी, उस वक्त भी वो कहती है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू इनसे राब्ते में रही हूँ। और फिर आपको याद होगा कि उसने मेरे ही लाइव सेशन में बैठकर ये बात की कि मेरे वालिद को प्रॉपर मेरी कॉल्स जो हैं वो ब्लू टिक मार्क लगे होते हैं, मतलब उनको प्रॉपर उनको मेरे मैसेजेस जो हैं वो मिलते हैं, उसके बावजूद मेरे वालिद कोई जवाब नहीं देते। और इसकी सबसे बड़ी जो गवाह हूँ वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद मेहदी अली काज़मी की चैट मौजूद है। जिस दिन आपको याद होगा कि कराची से मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आए थे, उन्होंने आके दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया था, उससे भी 2 दिन पहले मैंने मेहदी अली काज़मी को बता दिया था कि आपकी बेटी ने फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर होना है, आप वहाँ आएँ और आकर टेबल टॉक करें और अपनी बेटी से बात करें। अगर वो वाकई अपनी बेटी से मिलना चाहते होते तो वो ज़रूर आते। उन्होंने मुझे मैसेज का रिप्लाई भी किया था कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सैयद इकरारुल हसन साहब ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि एक बेटी जो है वो अपनी माँ को नहीं मिल सकती, अपने बाप को नहीं मिल सकती। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मुतअद्दिद बार अपने वालिद को कॉल्स कर चुकी है, उसके वालिद ड्रामा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा अपने भाई सैयद इकरारुल हसन से ये सवाल है कि वो खुद कह रहे हैं, वो अपने व्लॉग में ये बात कर रहे हैं कि इनके वालिदैन जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड कोई और बात करते हैं और वैसे वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सुलह करवा दें। एक तरफ वो डीएसपी के बारे में झूठ बोलते हैं, जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर हमारे मुल्क की पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, 2 आईजीज को चेंज करवा देते हैं, तफ्तीशी अफसर को चेंज करवा देते हैं, अदलिया के ऊपर सवाल उठा देते हैं, हर एक को वो गलत कह देते हैं, हर एक को वो झूठा कर देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि बाद में वो कह देते हैं मुझे तो कोई मिलता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। मेरा सैयद इकरारुल हसन से एक और सवाल है कि वो एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस पर पहले दिन ज़हीर का नंबर लिखा हुआ था, कैसे इसके वालिद ये बात कर सकते हैं कि मुझे तो उनके नंबर्स का भी पता नहीं, जबकि एफआईआर के ऊपर नंबर दर्ज था। अगर नंबर दर्ज ना होते, अगर आपके पास लोकेशंस ना होती, तो आप कैसे उनको ट्रेस करवा सकते थे। मतलब एक ऐसा शख्स जो खुद हिजान में मुब्तला है, जो दिन रात झूठ बोल रहा है, वो किसी को, अगर मैं तो कहती हूँ कि शुक्र है कि सैयद इकरारुल हसन जो है वो इसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे, क्योंकि इस शख्स ने उनको भी झूठा पढ़वा देना था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सैयद इकरारुल हसन को आयशा इकराम की दफ़ा माफ़ी मांगनी पड़ी, बिल्कुल उस तरह जैसे उनको अपनी टीम की करप्शन के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ी। आज मैं अपने भाई से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर वाकई ये कोई गैंग साबित हो गया और अगर वाकई ये कोई क्रिमिनल फैमिली हुई जो खुदा न खास्ता इस लड़की को कहबा खाने में जो है बेचने के लिए जा रही थी, ऐसे जिस्म फरोशी करवाना चाह रही थी जैसे कि मुबैना आपने दावा किया है, तो मैं सबके सामने आकर आप समेत पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगी। और अगर आप ये साबित ना कर पाए तो मैं इतना जानती हूँ कि आपका इतना ज़र्फ ज़रूर है कि जैसे आपने आयशा इकराम की दफ़ा की माफ़ी मांगी, जैसे आपने अपनी टीम की करप्शन पर माफ़ी मांगी, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस केस पर भी माफ़ी मांगेंगे। यहाँ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ पूरी कौम के साथ भी और अपने भाई सैयद इकरारुल हसन साहब से भी, कि आप लोग जो कहते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वालिद जो है वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाए या उसको जान से मार दे, या अपनी जो एक सगी बेटी होती है उसे अपने बाप से जान का खतरा कभी भी नहीं होता। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि स्पेन से आई हुई 2 सगी बहनों को उनके अपने सगे बाप ने और चचा ने कत्ल कर डाला, सिर्फ इस बात के ऊपर कि बेटियों ने ये कहा था कि हमने इस शख्स से शादी नहीं करनी बल्कि उस शख्स से शादी करनी है जिसे हम पसंद करते हैं। महज शादी के इनकार पर, अपनी पसंद का इजहार करने पर सगे बाप ने उनको मार दिया। गुजरात का ये वाकया है, लेकिन पूरी कौम ने उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया, पूरी कौम ने सिर्फ दुआ ज़हरा को ही सीरियस लिया हुआ है। मेरा सवाल है सैयद इकरारुल हसन से और पूरी कौम से कि आपको याद होगा अभी कुछ ही माह पहले की बात है जहां पर एक जवान बाप ने अपनी पहली औलाद बेटी पैदा होने पे 7 दिन की बच्ची को, जिसका कोई गुनाह भी नहीं था, जिसकी कोई पसंद नापसंद भी नहीं थी, उसको जान से मार दिया था। तो फिर ऐसी बेटियां जो कि अपने माँ बाप से हटकर अपनी पसंद से शादियां करती हैं, क्या उनकी ऑनर किलिंग नहीं होती? तो फिर आप कैसे इतने वसूख से ये बात कर सकते हैं कि बाप से कभी बेटी को कोई खतरा नहीं होता? और सैयद इकरारुल हसन से मेरी अब आखिरी बात यह है कि उन्होंने अपने ही व्लॉग के अंदर जो इनकी वालदा हैं, दुआ की वालदा, उनका एक वीडियो बयान दिखाया जिसमें वो खुद कह रही हैं कि मेरी बेटी एक खतरनाक गैंग के पास जा चुकी है और वो मेरी बेटी से इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं और वो बार बार कह रही हैं मेरी बेटी बहुत ही छोटी बच्ची है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपकी बेटी इतनी छोटी बच्ची थी कि जब पहले ही दिन इस केस की रिसर्च की थी, इसके बारे में तफ्तीश की थी, तफ्तीशी अफसर ने, तो उसने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि उस लड़की ने कोर्ट मैरिज को सर्च किया हुआ था। क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको ये पता था कि मैंने अपने घर से जब जाना है तो
कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है उसको सर्च करना है, गूगल के ऊपर कराची से लाहौर के सफ़र को कैसे सर्च करना है। क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको ये पता था कि कैश ऑफ क्लैंस कैसे खेली जाती है, पबजी कैसे खेली जाती है, और अगर फ़ोन के अंदर सिम ना हो तो लड़के के साथ बात करने के लिए राब्ता कैसे किया जाता है। क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको ये पता था कि जब मैंने अपने घर से निकलना है तो मैंने कचरे के 2 शॉपर लेकर जाने हैं, जिसमें से एक जो है वो बाहर कचरे का शॉपर रख देना है और दूसरे के अंदर मैंने अपना मेकअप का सामान और अपना पर्स वगैरह और अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर जानी है। क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको जाने से पहले ये बात भी पता थी कि मेरे माँ बाप मुझे ढूंढे ना, इसलिए मैंने लेटर लिख कर जाना है। क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि वो इतना बड़ा कदम उठाकर यहाँ ज़हीर के पास आ गई और आप लोगों को पता नहीं था? क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी जिसकी खातिर आप लोग जो है बकौल उस लड़की के, क्या आप उसे बेचने जा रहे थे, उसका आप सौदा कर रहे थे एक प्लॉट की खातिर? क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी जिसकी शादी की शॉपिंग्स में आप मसरूफ़ थे और वो आप लोगों से एक लड़के के नाम पर मार खाती रही? यहाँ मैं अपने भाई सैयद इकरारुल हसन से आखिरी बात करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये किस तरह का गैंग है जिसके वालिद जो हैं पूरी ज़िंदगी पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम रहे और वहीं पर नौकरी करते करते उनकी डेथ हो गई, वहीं से उनको ग्रेजुएटी मिली, वहीं से उनको पेंशन मिल रही है। ये कैसा गैंग है जहाँ पर ज़हीर की वालदा को पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, वो भी वहीं पर काम कर रही हैं, बुढ़ापे में इस उम्र में वो पहुँच गई हैं। ये कैसा गैंग है जहाँ पर शब्बीर खुद पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम है और अभी तक वहाँ पर काम कर रहा है? ये कैसा गैंग है जो पूरा का पूरा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है? ये कैसा गैंग है जिनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं और उन्होंने अपने वालिद की जो पेंशन और उनकी जो ज़मीन थी उससे जो प्लॉट ख़रीदा हुआ था उस प्लॉट को बेचकर वो अपना केस लड़ के अपनी फ़ीस पूरी कर रहे हैं? ये कैसा गैंग है जिनके पास अपना घर नहीं था ज़ाती और वो किराए पर रहने पे मजबूर थे? ये कैसा गैंग है जिनके पास बाहर से कोई एड नहीं आ रही, कोई मदद नहीं आ रही? उनके पास अगर कोई मदद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है जो अभी तक उनको बचा रही है। और मैं आपको इतना बता दूं सैयद इकरारुल हसन साहब के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जब सबसे पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, पुलिस ने किया था, CIA ने किया था, तमाम इदारों ने किया था, उन सब का एक म्यूचुअल एक ये फैसला था कि इसमें किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या गैंग शामिल नहीं है। और अगर आप फिर भी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये गैंग है, अगर आप कहते हैं कि तमाम एजेंसीज ने जो अपनी रिसर्च की है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो इनोसेंट प्रूव हुए हैं और तमाम पुलिस ने, CIA ने, इंटेलिजेंस ने, कोर्ट्स ने, सब ने उनको इनोसेंट प्रूव किया है और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं ये गैंग है और आप कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे सबूत हैं, तो फिर आपने क्या ये गुनाह नहीं किया कि पिछले 1.5 माह से आपके पास सबूत थे? ना आपने अदालतों को दिए, ना आपने दुआ ज़हरा के वालिदैन को दिए, ना आपने उनके वकला को दिए। तो आपको चाहिए कि 20 या 21 तारीख को अब जो कोर्ट्स लगने वाले हैं, सुनवाई होने वाली है, आपके पास अगर इतने सॉलिड प्रूफ्स हैं, आपके पास वीडियो सबूत हैं, आप आएँ अदालत में, आकर वो सारे अदालत को दिखाएं, वो सारे प्रूफ्स दें और लड़की को बाजियाब करवा लें। लेकिन प्लीज़ कौम को आप हिजान में मुब्तला ना करें, कौम को आप कंफ्यूज मत करें, आप आएँ और सबूत दें। और अगर आपके पास इतने सॉलिड सबूत हैं, लड़की को बाजियाब करवाएं। और अगर वो गैंग साबित होता है तो मैं पूरी कौम से, आपसे, सबके सामने माफ़ी मांगूंगी। और अगर ये साबित नहीं होता तो फिर आप माफ़ी मांगें बिल्कुल उस तरह से जैसे आपकी टीम ने करप्शन की, आपने माफ़ी मांगी, बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने आयशा इकराम की दफ़ा आपके मस्खरे दोस्त ने आपको छोड़ के मददगार अकेले छोड़ दिया और माफ़ी आपने मांगी। मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे पता है आप बहुत इंसान दोस्त हैं और मुझे पता है कि इस वक्त आप जज्बाती हुए हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है मेरे भाई, मैं इतने अरसे से आपको जानती हूँ कि इस वक्त आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं और इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ जज्बाती हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात कह रही हूँ कि कौम को प्लीज़ हिजान में मुब्तला ना करें। इस केस को पहले दिन से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और जितनी रिसर्च मेरी है शायद ही किसी की होगी, इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। ये एक सिंपल लव मैरिज है जो कि वक्त साबित कर देगा। और जैसे कि हमारी बात हो चुकी है कि अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं माफ़ी मांगूंगी और अगर आप गलत साबित हुए तो मुझे पता है कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप माफ़ी मांग लेंगे। और लोगों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप देखिए इस वीडियो से पहले जो वीडियो बना हुआ है वो लाइव सेशन है पूरे 2 घंटे का, जिसमें हमने दुआ ज़हरा से तमाम बातें पूछी हैं, तमाम सवालात पूछे हैं, तमाम इंटरव्यूज़ देखे हैं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी विद प्रूफ, जो मैं हमेशा आपको देती आई हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।